Hello and welcome to EduBridge IAS. In this video, we will discuss answers of those questions that we had posted on our Telegram channel. पहला क्वेश्चन है, there are 8 railway stations A, B, C, D, E, F, G and H and they are connected by two-way passage or one-way passage. One-way passage किन किन के बीच में C to A, E to G, B to F, D to H, G to C, E to C, H to G and two-way communication passage किन किन के बीच में A and E, G and B, F and D, E and D. अगर हम इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. C to A वन वे कम्युनिकेशन, E to G वन वे कम्युनिकेशन, B to F वन वे कम्युनिकेशन, D to H वन वे पैसेज, H to G वन वे पैसेज और E to C वन वे पैसेज. और टू वे पैसेजेस हो गए A to E, फिर G to B, फिर F to D और फिर हो गए E to D. इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है कि while traveling from C to H, which one of the following stations must be passed through. तो C to H हम कौन कौन से तरीके से रास्ते से जा सकते हैं. C to हम C से E नहीं जा सकते क्योंकि ये एक वन वे पैसेज है, तो हमें C से A जाना होगा. C से A, फिर यहाँ हम जा सकते हैं A to E, फिर E से D और D से H. ये हो गया एक फर्स्ट वे. सेकंड, C से A, फिर E, फिर G, फिर B, F, D और H. और कोई रास्ता है C से H जाने का? और कोई रास्ता नहीं है. तो ये दो ही तरीके हुए C से H तक जाने के. अब इसमें कौन सा स्टेशन दोनों रास्तों में आ रहा है? E. सो E, B will be the answer in this case. अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसी के बेसिस पे, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम F to A विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस. तो F से A जाना है, तो ये हो गया F. तो यहाँ से जाना हमें A. तो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? F से D, फिर E, फिर A. ये हो गया A. एक रास्ता F to D to A. सेकेंड हो सकता है F से D, D से H, H से G, G से C और फिर A. तो F, D, H, G, C और A. ये हो गया सेकेंड. थर्ड कौन सा हो सकता है? F से D, D से E, E से C और फिर A. F, D, E, C, A. और फिर एक रास्ता और हो सकता है F से D, D से E, E से फिर G, G से C और फिर A. तो F, D, E, G, C और फिर A. तो कितने रास्ते हो गए? F से A जाने के 4. तो D विल बी द आंसर इन दिस केस. अगला क्वेश्चन है कि इफ द रूट बिटवीन G and C is closed, which one of the following stations need not be passed through while traveling from H to C. तो हमें जाना है H से C और ये G से C वाला रास्ता बंद है. तो if we are trying to go from H to C, तो H से G, फिर B, फिर F, D, E, C. तो A वाले स्टेशन पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें आंसर हो गया C, A स्टेशन A.
अगला क्वेश्चन है कि इफ़ इन अ स्कूल देयर आर 5 टीचर्स ए बी सी डी एंड ई. A and B teaches Hindi, English. So teachers are A, B, C, D and E. A and B teaches Hindi and English. Hindi and English. और B में भी Hindi and English. C and B teaches English and Geography. C, English एंड ज्योग्राफी, यहाँ पर ज्योग्राफी. डी एंड ए टीचर्स मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथ्स एंड हिंदी, और यहाँ पर मैथ्स. ई एंड बी टीचर्स हिस्ट्री एंड फ्रेंच, हिस्ट्री एंड फ्रेंच, और यहाँ पर हिस्ट्री एंड फ्रेंच. Who teaches maximum number of subjects? So it is clear from this that B teaches maximum number of subjects. So answer will be B. The next question says कि A, B, C, D, E, F and G are lecturers from different cities: Hyderabad, Delhi, Shillong, Kanpur, Chennai, Mumbai, Srinagar. Who have participated in a conference. Each one of them is specialized in different subjects: economics, commerce, history, sociology, geography, mathematics and statistics. Further, अब जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है. तो पहले हमने लिखा है सिटीज़ को जो भी है, फिर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम टेबल में लिखेंगे. Lecturer from Kanpur is specialized in geography. Lecturer from Kanpur is geography. Lecturer D is from Shillong. D is from Shillong. Lecturer C from Delhi is specialized in sociology. Delhi, yes, C, and he is specialized in sociology. ये स्टेटमेंट भी यूज हो गया. Lecturer B is specialized in neither history and nor mathematics. इसको थोड़ी देर हम होल्ड पे रखेंगे. Lecturer A who is specialized in economics does not belong to Hyderabad. तो A यहाँ नहीं आएगा. इस स्टेटमेंट को भी हम थोड़ी देर होल्ड पे रखेंगे. Lecturer F who is specialized in commerce belongs to श्रीनगर. तो F आएगा यहाँ और ही इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स. ये स्टेटमेंट भी यूज हो गया. फिर है 7th स्टेटमेंट कि लेक्चरर जी इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स एंड बिलोंग टू चेन्नई. तो जी यहाँ पर आ गया, स्टैटिस्टिक्स. अब ए के लिए बोला है कि ही इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बट डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद. तो ए आएगा, यहाँ पर तो नहीं आ सकता, और यहाँ पर भी क्योंकि डी आ चुका है तो यहाँ नहीं आएगा, तो ए आएगा यहाँ पर. तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. ये स्टेटमेंट भी हो गया. अब सब्जेक्ट्स कौन से में बचे हैं? हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो इन दोनों हैदराबाद और शिलोंग के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इसके बाद इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. बट लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नन ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स. तो बी यहाँ पर नहीं आए, यहाँ बी हो नहीं सकता, तो बी आएगा यहाँ पर. और बचा कौन सा? ई. तो ई आ गया यहाँ पर. इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी? बी. यहाँ से बी. फिर क्वेश्चन है टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग टू? तो यहाँ पर मुंबई. इसका आंसर हो गया बी. हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद? इसका आंसर हो गया ई. तो यहाँ पर हो गया बी आंसर.
द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि द स्टेट्स आर लाइक पर्ल्स, राज्य मोतियों की तरह है, एंड द सेंटर इज थ्रेड, और सेंटर धागे की तरह है, विच टर्न्स देम इनटू अ नेकलेस. इफ द थ्रेड स्नैप्स द पर्ल्स आर स्कैटर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज corroborates the above statement? First statement is a strong center and strong states make the federation strong. This is wrong because यहाँ पर सिर्फ धागे के टूटने की बात की गई है, मतलब ओनली सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. तो ए इज रॉन्ग. द बी स्टेटमेंट सेज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज द बाइंडिंग फोर्स फॉर नेशनल इंटीग्रिटी. Yes, binding thread is acting like a binding force. So this can be the correct answer. We will hold this for a moment. फिर C statement है, a strong center is a hindrance to state autonomy. This is wrong. It is not hindrance, but यहाँ पर it is enabling. डी स्टेटमेंट है, स्टेट ऑटोनॉमी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ फेडरेशन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो बी इज द आंसर इन दिस केस. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन strategy agreed for alliance with party Y, but some of them had friends in party Y. तो दीज आर द सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स. इनमें से कुछ हैं जिन्होंने दे न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटेजी, और इनमें से कुछ है फ्रेंड्स ऑफ वाई. अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि विद रेफरेंस टू अबव इंफॉर्मेशन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू. ऑप्शन ए इज सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर अलायंस विद पार्टी एक्स. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑप्शन बी सेज देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स एज फ्रेंड. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट वी विल सी अदर ऑप्शंस एज वेल. No supporter of party X supported Z's campaign strategy. This statement is wrong because these are the people who have supported the Z's campaign strategy. Option D, no supporter of party X knew Z. Again, these people, some of them knew Z. So this statement is also incorrect. So answer is option B, which is there is at least one supporter of party Y who knew some supporter of party X as friend. अगला क्वेश्चन पूछा है कि विद रेफरेंस टू अबव इंफॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सम सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई एक्स न्यू जेड. यस, दिस इज ट्रू. सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु opposed Z's campaign strategy knew Z. This we do not know surely. And the third statement says no supporter of party X supported Z's campaign strategy. This statement is wrong because there are some supporters of party X have supported Z's campaign strategy. So which of the above statement is not correct? So only 3 is not correct. So answer is C. You can join our Telegram channel edubridge_IAS to attempt daily quiz, to get daily current affairs, to get PDF of other discussion on YouTube channel, and also to get other relevant information or some chatpati news about UPSC. Thank you very much.